لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی الہاشمی القرشی المطلبی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، لائق صد احترام صاحبان، اگر ہماری آواز مومنین کے گوش گزار ہو رہی ہے اور جو حضرات محفل کی نیت کر کے گھر سے آ گئے ہیں اور باہر ہیں، ان سے گزارش ہے کہ فرش محفل پہ آنے کی زحمت گوارا کریں۔ محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک کے ذریعے ہو چکا ہے اور الحمدللہ اس برس بھی جشن فاتح خیبر میں ہمارے مشاہیر شعراء کرام آپ کی نحیف سی آواز پر، آپ کے طیار محبت میں، آپ کی محبت کی باغڈور پر کھنچے چلے آئے، اور ہمارے محترم شبروز کانپوری صاحب، محترم مدثر جون پوری صاحب، محترم زہیر سلطان پوری صاحب اور محترم قرطاس کربلائی صاحب جو آپ کے سامنے ہیں، مسلسل کئی سالوں سے آپ کی منصفانہ فکر کی عدالت میں حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے کہ جو خالق تو ہے لیکن مخلوق نہیں، رازق تو ہے لیکن مرزوق نہیں، رب تو ہے لیکن مربوب نہیں۔ وہ اکبر اس لیے اکبر نہیں کہ وہ اکبر ہے، وہ اکبر اسی لیے اکبر ہے کہ کہیں سے اصغر نہیں۔ یہ وہ رزق معرفت توحید ہے کہ جو محرم اسرار توحید اور مظہر صفات الہی مولا کائنات خلال مشکلات فلک جناب عزت مآب مولا غدیر جناب امیر غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے کائنات کو رزق معرفت توحید عطا کیا اور کائنات میں توحید کے رزق کو تقسیم کیا۔ غالباً اس سے قبل شاید میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا ہے یا نہیں کیا، لیکن آج طبیعت یہ کہہ رہی ہے کہ اس زاویے سے گفتگو کی جائے اور اس زمانے کو دیکھتے ہوئے اور حالات حاضر اور پریزنٹ ٹائم کے آئینے کو دیکھتے ہوئے ان تمام معاملات پر بولنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ جب تک ہمارا اور آپ کا اور ہمارے بچوں کا عقیدہ توحید صحیح نہیں ہوگا، نہ امامت سمجھ میں آئے گی نہ رسالت سمجھ میں آئے گی۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی اور ہمارے دو بھائی جو سگے بھائی ہیں ٹویٹر پر، فیس بک پر، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا میں ایک دوسرے کے اوپر لان تان کرنے لگتے ہیں، حالانکہ صحیح وہ بھی ہوتا ہے اور صحیح سامنے والا بھی ہوتا ہے، غلط ہوتی ہے بیچ کی جہالت کہ جو دونوں کو لڑوا دیتی ہے۔ اگر یہی جہالت معرفت کے ذریعے سے دور ہو جائے اور علم کے ذریعے سے دور ہو جائے تو پھر یہ اختلاف اتحاد میں تبدیل ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، اب چونکہ جشن فاتح خیبر ہے، میں آخر میں جا کر ایک تبرک آپ کے حوالے کروں گا، لیکن اب چونکہ آج توحید کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، عالم تکوین و بساط ارضی اور رباط سماوی میں اگر نگاہ ڈالیں تو ہر شے اسی واجب الوجود کی تخلیق کردہ ہے، ہر شے اسی کے ارتباط سے مرتبط ہے، اسی کے اعتلاف سے مختلف ہے، اسی کے انصبات سے منصبت ہے، اسی کے انبساط سے منبسط ہے۔ عرش و کرسی میں اسی کے فضل کا رنگ ہے، صراط و میزان پر اسی کے عدل کا ڈھنگ ہے، برق و رات میں اسی کا جلوہ و آہنگ ہے،
तबक़ात फ़लकी पर उसी का परतव है। जुमले ना भी समझ में आए तो बच्चे वाह वाह करते रहें ताकि माहौल बना रहे और ये लगे कि हाँ महफिल हो रही है। तबक़ात फ़लकी पर उसी का परतव है, तराइक़ समावी में उसी की रौ है, शम्स व कमर में उसी की ज़ौ है, सितारों के चरागा में उसी से लौ। अल मुख्तसर, अब मैं इस ज़बान की बागडोर को तंग करके मैं आले मोहम्मद की मदह के खेमे में इज़्न दुखूल ले रहा हूँ। अल मुख्तसर, आसमानों पर निगाह डालें तो उसी का जलाल नज़र आए और गुलकदे अर्ज़ी को देखें तो उसी वाजिबुल वजूद का जमाल नज़र आए। और दुरूद व सलाम उन ज़वात मुक़द्दसा के लिए कि जिन के वजूद अक़दस की गवाही से आज तक हयात ला इलाहा इल्लल्लाह का सफ़र चल रहा है, वरना हमें क्या पता कि वो कब से है, कब से था और कब तक रहेगा। ये तो महरम असरार तौहीद हमारे और आपके आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस कायनात में आने के बाद बताया और कहा क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, कि कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। अब आप देखिए इस ला इलाहा इल्लल्लाह में भी कैफियत ये रखी कि ये ज़ुल्फ़क़राना अंदाज़ था कि पहले ला इलाह कहा यानी पहले तबर्रा किया, उसके बाद तवल्ला का हुक्म दिया। आपने महसूस नहीं किया कलमा तौहीद में भी पहले तबर्रा है उसके बाद तवल्ला है, यानी पहले तुम झूठों का इनकार करो तब एक सच्चे का इकरार माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक दिल में सनम भी बैठा हो और रहमान की मोहब्बत भी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये दर्स तो हमें इब्तिदाइया तौर पे हमको ये दर्स ले लेना चाहिए कि जिस वक्त हम कलमा तौहीद का विर्द करते हैं तो ज़रा इसके आहंग के ऊपर गौर कीजिए। क्या इंतज़ाम है कुदरत का कि पहले कहा कि झूठों का इनकार होगा फिर एक सच्चे का इकरार माना जाएगा। अब वो परवरदिगार कि जिसे कोई देख नहीं सकता तो फिर जाहिर है कि जिसे कोई नहीं देख सकता, अभी नहीं बल्कि कभी नहीं, बल्कि हमारी और आपकी क्या बिसात है। मूसा जैसा कलीमुल्लाह नबी जो कोहे तूर पे जाकर उम्मत की अर्जी जब तौहीद के दफ्तर में दाखिल करे तो तौहीद का जवाब आए मूसा अभी नहीं, तुम हमें कभी नहीं देख सकते। तो एक जुमला कहने का जी चाहता है साहिबान बलागत, फसीहुल लिसान, बलगुल कलाम, अहलियान ज़बान के लिए ये तोहफ़ा दे रहा हूँ कि हम मूसा जैसा नबी जब देखने की ख्वाहिश करता है तो कोहे तूर पे लंतरानी सुनकर बेहोश हो जाता है और कौम राख हो जाती है यानी सुरमा बन जाती है। अब आप बताइए कि उस खुदा को तो कभी देखा नहीं जा सकता। एक बात बहुत अहम करना चाह रहा हूँ अपने बच्चों के लिए, याद रखिएगा कि वो कभी दिखाई देने वाला नहीं है, इसलिए कि हम वो अल्लाह नहीं मानते कि जो हाथ रखता हो, हम उस अल्लाह को नहीं मानते कि जो चेहरा रखता हो, हम उस अल्लाह को नहीं मानते कि जो पैर रखता हो, बल्कि हमारा खुदा वो है कि जो जिस्म जिस्मानियत से मुबर्रा है। अब अगर आप सही और सालिम हैं और बुखार की हालत में लिखी गई किताबों के ऊपर भी नज़र रखते हैं तो मैं एक इशारा करना चाहता हूँ और आपके ज़हन दिल में अगर उतर जाए तो इस आखिरुज़्ज़मन हकीर फ़कीर अब्द ज़लील सराफ़ा तक़सीर इस कुंदे नातराश को दुआओं में याद रखिएगा। अज़ीज़ान गिरामी, हम उस खुदा को मानते हैं कि जिस खुदा को अल्लाह के वली ने हम तक पहुँचाया है। हमारे यहाँ वो खुदा नहीं होता कि जो महशर के मैदान में एक नौजवान लड़के की शक्ल अख्तियार करके कुर्सी पे बैठ जाएगा। आपने महसूस नहीं किया। हम उस खुदा को भी नहीं मानते कि जब जहन्नम कहेगा हल मिन मजीद, मुझे और चाहिए, नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह, अल्लाह अपना दायां पैर डाल देगा। और हाँ देखिए अजीब अजीब अकीदे हैं साहब, कैसे कैसे बुखार की हालत में यह अजीब बातें की गई हैं। अच्छा, बुखार इनके दिमाग पे था और इल्ज़ाम रसूल के दिमाग पे लगा दिया। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद आवाज़ बुलंद। अब आप ज़रा महसूस कीजिए कि परवरदिगार आलम जो कभी दिखाई नहीं देता, मैं तब मुतवज्जे रहिएगा। देखिए इत्र लगाते रहिए, लेकिन जो तौहीद की खुशबू में बैठ रहा हूँ और विलायत की खुशबू जो रूह में उतार रहा हूँ, इसे भी ज़रा महसूस कीजिएगा। महरम असरार तौहीद यानी अली इब्न अबी तालिब, या एक बात कहूँ कि अव्वलो न मोहम्मद, औसतो न मोहम्मद, आखिर न मोहम्मद, व कुल्लो न मोहम्मद। पहले मोहम्मद से लेकर आखिरी मोहम्मद तक यानी जो 14 अल्लाह ने रहबरान मुतलक हमें अता किए, तो उस अल्लाह अकबर ने इस छोटी सी कायनात
कायनात में जब 14 अकबर दिए तो ऐसे अकबर मिले कि जिनके मिसाल न ज़मीन पे है ना आसमान पे है। यानी ये 14 उसकी मिसल नहीं है लेकिन उसकी मसल है। आपने महसूस नहीं किया मसल किसे कहते हैं और मिसल किसे कहते हैं? भाई इसी पे बात करके मैं मौलाए कायनात तक आकर अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ और बहुत अहम बात करना चाह रहा हूँ कि जब खुदा को कोई देख ही नहीं सकता तो इतना बड़ा मजमा मेरे सामने है, माशाअल्लाह क्वालिफाइड एजुकेटेड यूथ मेरे सामने है। जरा ताक़ुल कीजिए, तदब्बुर कीजिए कि किसी भी इंसान को पहचाना जाता है उसकी सिफत के जरिए से। यानी अगर मैं आपके सामने ना आऊं और आपके सामने हमारे कोई भी हमारा भाई हो और मैं कभी आपके इलाके में ना आया हूं और लोग ये कहें कि भाई क़िरतास साहब निजामत ऐसे करते हैं, तो फिर आप उस सिफत को पहले देखिएगा कि वो कैसे करते हैं। इसका मतलब यह है कि कोई सानी क़िरतास हो और सानी का इतलाक उसी पर होता है कि जिसकी शबाहत के आईने में बाल बराबर का फर्क ना हो। यानी बोले तो असल की तरह, वह उठ जाए तो असल की तरह, ठहर जाए तो असल की तरह। यानी गुफ्तार, रफ्तार, कलाम, जबान, बयान, जेर और जबर और नुक्ते में कोई फर्क ना हो, उसे कहते हैं सानी। इसीलिए यहां पर सानी है। अब देखिए रजब के बाद शाबान का महीना है, वो आपको तो कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। शाबान का महीना शबीहों का महीना है, आपने गौर ही नहीं फरमाया। शाबान का महीना शबीहों का महीना है और सानी का इतलाक जो है वो सिर्फ बनु हाशिम के घराने में है। मोहम्मद को देखा तो शबीह पैगंबर अली अकबर को भेजा, तो यानी सानी का इतलाक अली अकबर के ऊपर हुआ। यहां तक कि रिवायत में वाकया मौजूद है, पूरी जिम्मेदारी के साथ गिराफ एजेंसी के जरिए यह बात कह रहा हूं और पूरी दुनिया में पहुंचा रहा हूं कि जनाब अली अकबर रसूल अल्लाह से इतना मुशाबे थे कि अरब में अली अकबर को देख के कुछ लोग मुसलमान हो गए। यानी देखा अली अकबर को और कलमा मोहम्मद का पढ़ा, एक सलवात पर मोहम्मद वाल। बस ये आखिरी बात आपसे करना चाह रहा हूं और मैं मिर्जा सलामत अली दबीर की रूह से इजाजत लेते हुए अपनी नज़्मी निजामत के सफर का आगाज कर लूंगा। लेकिन बहुत अहम बात कह रहा हूं। मेरे कहने का मकसद यह है कि जब तक इंसान का कमाल ज़हूर में नहीं आता तब तक उसकी मुअर्रिफी और उसकी पहचान नहीं होती। आप इशारे से नहीं बता सकते कि वो इल्म जा रहा है। देखिए बहुत अहम बात करने जा रहा हूं। आप इशारे से नहीं बता सकते कि वो निजामत जा रही है। आप इशारे से नहीं बता सकते कि वो शायरी बैठी हुई है। आप ये नहीं कह सकते कि ये लहजा बैठा हुआ है। आप ये नहीं कह सकते कि यहां ये इल्म बैठा हुआ है। नहीं, इल्म को पहचानने के लिए आलिम का होना जरूरी है। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। अदल को पहचानने के लिए आदिल का होना जरूरी है। कुदरत को पहचानने के लिए कादिर का होना जरूरी है। शेर को पहचानने, शायरी को पहचानने के लिए किसी शायर का होना जरूरी है। अब थोड़ा सा दकीक जुमला है लेकिन अपने बुजुर्गों से मैं दुआएं चाहता हूं। याद रखिएगा, सिफत पहचानी जाती है मौसूफ के जरिए से। यानी सिफत को पहचानने के लिए किसी मौसूफ का होना जरूरी है और सिफत मुतकाजी होती है किसी मौसूफ की कि जब वो कमाल दिखाता है तो जो कमाल उसके अंदर होता है जात उस एतबार से पहचानी जाती है। अब एक बात बताइए, इतने बड़े मजमे से मेरा सवाल है, अल्लाह नाराज होता है या नहीं होता? भाई पूरा कुरान गवाह है, अल्लाह खुश होता है या नहीं होता? अब घर जाइएगा इस जश्न के बाद, जिनकी माएं हयात हैं, जिनके वालिदैन हयात हैं, तो इस महफिल के बाद अपने घर जाकर वालिदैन को शुक्राने के तौर पे एक सलाम अदब कर लीजिएगा कि उस आगोश में आप परवान चढ़ रहे हैं जहां पे इबलीसी तौहीद नहीं दी जा रही है बल्कि अलवी तौहीद दी जा रही है। और वहां वो तौहीद का रिस्क बांटा जा रहा है कि जो महरम असरार तौहीद अली इब्न अबी तालिब ने हमारे फतेह रिस्क तौहीद बांटा है। मैं तब देखिए अज़ीज़ाने गिरामी, कुदरत को पहचानने के लिए कादिर का होना जरूरी, अदल को पहचानने के लिए आदिल का होना जरूरी, इल्म को पहचानने के, मैं तब देखिए बहुत अहम बात कर रहा हूं, इल्म को पहचानने के लिए आलिम का होना जरूरी, शायर को पहचानने के लिए शायरी को पहचानने के लिए शायर का होना जरूरी। अब एक बात, इतना बड़ा मजमा मुझे बताए और पढ़े लिखों से मेरा ताल्लुक है और इस वक्त मैं खिताब कर रहा हूं, अजीब बात कहने जा रहा हूं, अल्लाह नाराज होता है या नहीं होता? आप सही कहेंगे कि होता है। अल्लाह खुश होता है कि नहीं होता? होता है। चाहिए इल्म कलाम की बहस छेड़ रहा हूं और इसको पानी करके आपके हवाले कर रहा हूं। उलमा से जाके पूछिए, यहां मुजफ्फरपुर से लेकर
लेकर हौज़ इल्म मुक़द्दस अल मुस्तफ़ा यूनिवर्सिटी से लेकर सीरिया तक और सीरिया से लेकर मशहद मुक़द्दस तक और वहां से नजफ़ अशरफ तक की किरताज करबलाई की जिम्मेदारी है कि ये इल्म कलाम की बहस है। हमारे पास इब्लीसी तौहीद नहीं है, हमारे पास अली वाली तौहीद है कि जो अलवी तौहीद अल्लाह अली ने हमें बांटी है और रिज़्क़ मारिफत तौहीद दिया है। याद रखिएगा, अल्लाह नाराज भी होता है, अल्लाह खुश भी होता है, लेकिन नाराज होना कैफियत है, खुश होना यह कैफियत है। और जिसमें कैफियत पाई जाए वो कुछ तो हो सकता है, खुदा नहीं हो सकता। देखिए, मैं अजीब बात आपको अजीब मुल्क में मैं ले आया हूं और मेरी तकरीर अजीब मंजिल पे है। आप लाखों सलाम कीजिए घर जाकर कि आप किस घर में परवान चढ़ रहे हैं। कम से कम अल्लाह ने आपको अली जैसा मजहर सिफात इलाही अल्लाह ने आपको अता किया कि अली ना हो तो कभी तौहीद साबित ना हो पाए। इसलिए कि नाराज होना कैफियत है, खुश होना आखिरी बात है, खुश होना कैफियत है। आज की रात का तोहफा दे रहा हूं, नाराज होना कैफियत, खुश होना कैफियत। लेकिन जिसमें कैफियत पाई जाए वो कुछ तो हो सकता है, लेकिन खुदा नहीं हो सकता। अब एक बात बताइए, पता कैसे चले कि इंसान नाराज कब है और खुश कब है? का एक बच्चा जब पैदा होता है तो रसूल की हदीस है, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरतिल इस्लाम, हर बच्चा पैदा होता है फितरत इस्लाम पर। उसको ऑपरेट करने वाले उसका ऑपरेटिंग सिस्टम अपने हिसाब से तय करते हैं और पाल के अपने जैसा बना देते हैं। अब एक बात बताइए, जब बच्चा पैदा हुआ तो फितरत इस्लाम पर पैदा हुआ, उसके जहन पर, उसके विजदान पर, उसकी थिंकिंग पर, उसकी मेंटालिटी पर, उसके फिक्र पर, उसके जहन पर अभी उसके दिमाग पर कोई कल्चर गालिब नहीं आया, कोई रिलीजन गाजिब नहीं आया। जब वो पैदा हुआ, एक चचा की गोद में गया तो हंसने लगा, उनकी गोद में गया तो रोने लगा। इसके मुंह में जबान तो है लेकिन कुव्वते गोयाई नहीं है। ये जबान से नहीं कह सकता कि मैं नाराज हुआ या खुश हुआ, लेकिन चेहरे के उतार चढ़ाव ने बता दिया कि इसके दिल के हालात क्या हैं। अभी आप नहीं पहुंचे, वजह कहते ही उसे हैं, चेहरा कहते ही उसे हैं कि जो अंदर के हालात की खबर को बाहर तक पहुंचा दे। यानी बच्चा जब इनकी गोद में गया तो हंसने लगा, आपकी गोद में आया तो रोने लगा। यानी बच्चे ने कोई कलाम नहीं किया, लेकिन बच्चे के चेहरे के उतार चढ़ाव ने बताया कि इनसे खुश है और इनसे नाराज है। इसका मतलब यह है कि चेहरा बताता है कि इंसान कुछ ना भी बोले तो चेहरे का उतार चढ़ाव बताता है कि किससे ये बच्चा नाराज है और किससे खुश है। लेकिन खुदा की कसम, हम मूसा जैसा नबी अल्लाह को नहीं देख सकता। तो अब मेरा सवाल है कि और मुसलमान पता नहीं अल्लाह का चेहरा साबित कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन कम से कम हमारे यहाँ चेहरे वाला अल्लाह नहीं होता, हमारे यहाँ हाथ रखने वाला अल्लाह नहीं होता, जिस्म रखने वाला अल्लाह नहीं होता। तो अब कैसे पता चले कि अल्लाह नाराज कब हुआ और खुश कब हुआ? तो अजब नहीं कि रसूल की हदीस बढ़ के सहारा दे। अगर यह पता करना है कि अल्लाह नाराज कब है और खुश कब है, तो कायनात में देखो कि वजहुल्लाह किसे कहते हैं। आज के मेरी बात वाज़े हो जाए, कायनात में नजर दौड़ाओ कि वजहुल्लाह किसका खिताब है। अगर अली खुश हैं तो अल्लाह खुश है, आप इसमें ताज्जुब में ना पड़िएगा। अली खुश हैं तो अल्लाह खुश है, अली नाराज हैं तो अल्लाह नाराज है। अजीजाने गिरामी, अली ठोकर मार के मुर्दे को जिलाते हैं, पहचाना खुदा जाता है। हाँ, नो के नेजा पर कटे हुए सर से कुरान की तिलावत हुसैन करते हैं, पहचाना खुदा जाता है। फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा यहूदी के घर में पहुंचती है और जब दुल्हन मर जाती है, बाराती बेहोश हो जाते हैं, तो मज़हर सिफात इलाहिया यानी बीबी ज़हरा के जो हुज्जतों की हुज्जत है, मुसल्ला बिछाती हैं, हाथों को बुलंद करती हैं, बारगाह खुदाबंदी में दुआ करती हैं। कमाल ज़हरा का होता है, पहचाना खुदा जाता है। इसका मतलब यह है कि 14 को मानने वालों के लिए मुबारकबादी यह है कि कम से कम तुम्हारे पास तौहीद भी सलामत है, इमामत भी सलामत है, रसालत भी सलामत है। अब ज़ुहैर साहब और मुदस्सिर साहब को देखते हुए एक शेर से बड़ा जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। इस बिगड़े हुए दौर में बड़ी सुधरी हुई बात करने जा रहा हूं, इसे सुधरे हुए अंदाज से समाप्त कर लीजिएगा और बड़े सुधरे हुए अंदाज से मैं पहुंचा रहा हूं कि इब्तिदाई फजाइल अली के सुनने के बाद जो लोगों को हुलू का फुलू हो जाता है, कम से कम अल्लाह का शुक्र है कि हमारे यहाँ ये बुखार जल्दी नहीं चढ़ता, लेकिन जिन्हें चढ़ जाता है उन्हें इसलिए चढ़ता है क्योंकि जिनका अकीदे तौहीद मोम से ज्यादा कमजोर है, वो अली के इब्तिदाई फजाइल की गर्मी से पिघल जाता है।
سلامت رہیے، آباد رہیے. ایک صلوات اپنی سلامتی کے لیے پڑھیے آپ حضرات. بس میں نے اپنی بات کو سمیٹ دیا. اور عزیزان گرامی یہ بات یاد رکھیے گا کہ سب سے پہلے اپنے عقیدہ توحید کو مضبوط کر لیجئے تاکہ ولایت بھی سمجھ میں آئے، رسالت بھی سمجھ میں آئے اور امامت بھی سمجھ میں آئے. یہ ہمارے یہاں مجلسوں میں جشن فاتح خیبر ہے. میں ایک جملہ تبرکاً آپ کے حوالے کر رہا ہوں عزیزان گرامی. یہ جو جشن فاتح خیبر ہے ہمارے یہاں مجلسوں میں، ہمارے یہاں محفلوں میں ایک ہمارے بزرگوں نے جو تحریک چلائی وہ آج تک تہذیب سلامت ہے کہ کسی شعر کے بعد جو نعرہ آپ کو یاد ہے وہی نعرہ لگاتے ہیں آپ اور کہتے ہیں نعرہ حیدری. تو کچھ لوگوں کو مجھے پڑھے لکھوں سے خطرہ نہیں ہے، گراف ایجنسی پہ ببانگ دوہل یہ بات کہہ رہا ہوں، مجھے زیادہ پڑھے لکھوں سے زیادہ خطرہ ہے. پڑھا لکھا تو سمجھ جاتا ہے لیکن جو زیادہ پڑھا لکھا ہے اس کے بہکنے کے امکان زیادہ ہوتے ہیں، وہ اپنے علم کو سنبھال نہیں پاتا اور جان چھلک جاتا ہے. عزیزان گرامی یاد رکھیے گا یہ مجلسوں میں نعرہ حیدری یوں ہی نہیں لگایا جاتا. اپنے بزرگوں کی تہذیب کو سلام کیجئے. اور اس وقت میں خطابت اور نظامت کے ہاتھوں سے آپ کے جو جذبہ بلا کو سلام کرتے ہوئے جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں جو جشن فاتح خیبر کا ہے کہ یہ نعرہ حیدری ہماری تہذیب ہے، ہمارا مذہب ہے. اور وہ کیسے ہے کہ دشمنوں کے لیے اس سے اچھی تلوار کوئی ہو ہی نہیں سکتی. کہ وہ کیسے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمارے بزرگوں نے یہ نعرہ کیوں رائج کیا مجلس اور محفل میں. کہ کیوں رائج کیا؟ کہا کہ تاریخ میں بہت سی جنگیں ہیں لیکن واحد جنگ ہے جنگ خیبر کہ جہاں پہ مرحب نے کہا کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے تو علی نے اپنا تعارف علی کے ذریعے نہیں کرایا، زرحام کے ذریعے نہیں کروایا، غضنفر کے ذریعے نہیں کروایا، وصی رسول کے ذریعے نہیں کروایا، ولی اللہ کے ذریعے نہیں کروایا، بلکہ اس نام کا انتخاب کیا کہ جو والدہ گرامی نے رکھا تھا. اور فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرا کہ میری ماں نے. یہ جملے تو جوش خطابت میں لوگ کہہ جاتے ہیں کہ پورا خیبر جانتا ہے یا پوری دنیا جانتی ہے. یہ تاریخ میں جملے نہیں ہیں. ایک صلوات بر محمد و آل محمد بآواز بلند. حیدری. دیکھیں ماشاءاللہ آپ تو سرخ رنگ کا سویٹر پہنے ہوئے ہیں، شاید سویٹر پہنے ہوئے ہیں. یہ سرخ رنگ کی جیکٹ نہیں ہے، یہ تبرہ پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ. ہاں مرحبستان سے گزر جائیں تو نہ جانے کتنے مرحب کا قتل ہو جائے. سلامت رہیے، مولا آپ کو شاد و آباد رکھیں. یہ آپ کے مسکراتے ہوئے چہرے ہی تو سقیفہ میں آگ لگاتے ہیں صاحب، ورنہ اس بگڑے ہوئے دور میں سدھری ہوئی باتیں کرنے والے کہاں بچے ہوئے ہیں. ہم نے بزرگوں کی نالین سیدھی کی ہے تو یہاں تک پہنچے ہیں. یہ مدحت آل محمد کا پہاڑ ہے اور کوہ طور ہے کہ جہاں سے ہم کلام کر رہے ہیں. عزیزان گرامی بس ایک جملہ کہ جشن فاتح خیبر ہے، اس عنوان کو دیکھیے، جشن فاتح خیبر. لقب شرا کے فاتح بننا اور ہے، ہاں کمال دکھا کر فاتح خیبر کا خطاب لے لینا یہ اور ہے. جشن فاتح خیبر. دیکھیں باتیں ہوتی رہیں گی لیکن یہ جملہ بڑا قیمتی دے رہا ہوں. جشن فاتح خیبر. ہمارے بزرگوں کی تہذیب یہ رہی کہ اس جنگ خیبر کی رعایت سے بابو بھائی محفلوں اور مجلسوں میں نعرے حیدری لگوایا تو پڑھے لکھوں کو برا نہیں لگا لیکن زیادہ پڑھے لکھوں کو زیادہ برا لگا کہ بھئی نعرے حیدری کیا ہوتا ہے. لیکن آپ کو نہیں پتا نعرے حیدری خیبر کی یاد دلاتا ہے. کہ وہ کیسے؟ کہا جب مولا نے کہا کہ انا الذی سمتنی امی حیدرا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. بھئی خیبر ویبر جانتا ہے یہ سب نہیں، میں نے پڑھا ہے. جو روایت میں جملے ہیں وہ میں بتا رہا ہوں. جوش خطابت کے جملے اور ہوتے ہیں لیکن جو روایت کے جملے ہیں بتا رہا ہوں. مولا نے فرمایا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. جیسے ہی یہ جملہ کہا مرحب کو اس کی ماں کی وصیت یاد آ گئی. اب بھی آپ رعایتوں پہ داد نہیں دیں گے. جیسے ہی نام حیدر آیا مرحب کو مرحب کی ماں کی وصیت یاد آ گئی. اب بزرگوں نے یہ طے کر لیا قیامت تک محفل اور مجلس میں یہی نعرہ حیدری لگے گا تاکہ قیامت تک مرحب کی آنے والی اولادوں کو ان کی ماں یاد آتی رہے.